सरिला संसदर मौसुमी अधिवेशन। चलित अधिवेशन में लोकसभा 12 विधेयक पारित होईछि एवं 55 प्रश्नर मौखिक उत्तर मिली। लोकसभा मात्र 37 घंटा चर्चा हो पारिला। यापर संसद को अनिर्दिष्ट काल जाए मुलतवी कर बाचस्पति ओम बिरला। यासह कहिसेंति संसद में गारिमापूर्ण भाव चर्चा हेबा जरूरी। सेपटे राज्यसभा गृह को सुरुखुरु चलाइबाकू जेते प्रयास हेले भी सुरुखुरु चली पारिलानी गृह बोली उपाध्यक्ष हरिवंश उद्वेग प्रकाश करिसेंति। एही अधिवेशन में मात्र 41 घंटा राज्यसभा चली पारिला। 285 प्रश्न पचारिबाकू सुजोग थिले हें मात्र 14टी प्रश्न पचरा जाइथिला एवं 14टी बिल पास होईछि। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Honorable members, we have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha. Despite the best efforts of the chair to facilitate meaningful and disruption-free discussion on the listed business, the session was regrettably marked by repeated disruptions, leading to frequent adjournments. This not only resulted in the loss of precious parliamentary time, but also deprived us the opportunity to deliberate upon several matters of public importance. Overall, the House functioned for only 41 hours and 15 minutes. The productivity of this session stood at a disappointing 38.88%, something that calls for serious introspection. Members had the opportunity to raise 285 questions, 285 zero-hour submissions and 285 special mentions. However, only 14 questions, 7 zero-hour submissions and 61 special mentions could actually be taken up. While these contributions are of value, they represent only a fraction of what this august House is capable of achieving when it functions to its full potential. During the session, as many as 14 government bills were passed or returned. The House also held a special discussion on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor undertaken in response to the terrorist attack in Pahalgam, a matter of great national importance. The discussion saw the participation of 64 members over 2 days and was replied by the Honorable Minister of Home Affairs. The House also benefited from a suo motu statement by the Honorable Minister of Commerce and Industry on India's US bilateral trade, which provided valuable insights into India's expanding economic engagement. In addition, the House was duly apprised of the vacancy in the office of the Honorable Vice President of India. We also bid farewell to 6 members from Tamil Nadu who completed their term on 24 July 2025. I hope the lessons of this session will guide us towards more constructive and purposeful deliberations in the future. Before we conclude, I wish to place on record my sincere appreciation for the panel of vice chairpersons for their cooperation and readiness to assist the chair, and for the Secretary General and the entire team of officers for their exemplary service, dedicated efforts and meticulous planning, which have ensured the smooth conduct of the proceedings and activities of the House. Finally, I extend my warm greetings and best wishes to all members on the forthcoming festivals, Ganesh Chaturthi, Milad un Nabi, Onam, Durga Puja, Dasahara, Diwali and others. May these occasions bring peace, harmony and prosperity to all. Jai Hind. शेष दिन में प्रधानमंत्री उपस्थित बिहार एसआईआर को नहीं गृह में हंगामा करथिले विरोधी दल। भोट चोर गादी छाड़ नारे कंपाई गृह को। 30 दिन क्रमागत जेल में रहिले मंत्रीपद जीवा नहीं संविधान संशोधन बिल आनी अमित शाह। अश्विनी वैष्णव द्वारा आगत ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसदर उभय गृह में मंजूरी मिली। संसदीय व्यापार मंत्री कहिसेंति एही अधिवेशन सरकार लगी बड़ उपयोगी रहिला। विरोधी को पर्याप्त सुजोग मिलानी बोली जो आरोप लदुछंती विरोधी एथिलागी विरोधी ही दायी। गृह में क्रमागत श्रृंखला सह आलोचनार भी सहयोग कलेनी। आईएसएस रे पहुंची शुभ्रांशु शुक्ला अभिनंदन सकाशे गृह में आलोचना लगी समय धार्य होता, किंतु विरोधी यह कराई भी देलेनी। राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते जेतेबेले विरोधी गृह में रहुनाहांती सेतेबेले बिल पास करुछंदी सरकार। विरोधी सह असहमति प्रकाश करने अलग कथा, किंतु कहवाकू मौका छड़ाई नवा अगणतांत्रिक सरकारी स्वेच्छाचारिता।
देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज हैं उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। हमारा जो सेशन था उसका लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए, तो इनको भी काफी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है, बिल में थे और प्लेकार्ड लेकर हाउस में थे, गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए, आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, स्वागत करूंगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा हंगामारू आरंभ हंगामारे शेष। संसदर मौसुमी अधिवेशन रे धोईगला साधारण जनता स्वार्थ संबलित प्रसंग। जुलाई 21 आरंभ मौसुमी अधिवेशन जेमिति पूरा हो हल्ला हट्टगोल सरीगला। प्रधानमंत्री मोदी अधिवेशन आरंभ पूर्व यह विजय उत्सव अधिवेशन कही। ऑपरेशन सिंदूरर सफलता को नहीं उत्साहित पूरा देश को संसदरू वार्ता जाऊ बोली कहवा सत्वे यह उपरे आलोचना है सत, किंतु एसआईआर पूरा अधिवेशन को गिड़ीदेला बोली कहले भूल हेबनी। प्रधानमंत्री मोदी भी विरोधी आचरण को नहीं निराशा व्यक्त करिसेंती। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता प्रदीप नायक रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।